اور نئے سال کی خوشیاں سب کو مبارک ہوں۔ آئیے میرے ساتھ نکالیں دوسرا سلاطین کی دوسری کتاب، اس کا 20واں باب اور اس کی پہلی آیت سے ہم 7ویں آیت تک اس کو تلاوت کریں گے۔ سلاطین کی دوسری کتاب، اس کا 20واں باب اور اس کی پہلی آیت سے 7ویں آیت تک ہم اس کو تلاوت کریں گے۔ تو پہلی آیت کو میں پڑھتا ہوں۔ تو لکھا ہے، انہی دنوں میں حزقیاہ ایسا بیمار پڑا کہ مرنے کے قریب ہو گیا۔ تب یسایہ نبی آموس کے بیٹے نے اس کے پاس آ کر اسے کہا، خداوند یوں فرماتا ہے، تو اپنے گھر کا انتظام کر دے، کیونکہ تو مر جائے گا اور بچنے کا نہیں۔ تب اس نے اپنا منہ دیوار کی طرف کر کے خداوند سے یہ دعا کی کہ اے خداوند، میں تیری منت کرتا ہوں، یاد فرما کہ میں تیرے حضور سچائی اور پورے دل سے چلتا رہا ہوں، اور جو تیری نظر میں بھلا ہے وہی کیا ہے۔ اور حزقیاہ زار زار رویا۔ اور ایسا ہوا کہ یوسایہ نکل کر شہر کے بیچ کے حصہ تک پہنچا بھی نہ تھا کہ خداوند کا کلام اس پر نازل ہوا کہ لوٹ اور میری قوم کے پیشوا حزقیاہ سے کہہ کہ خداوند تیرے باپ داؤد کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے تیری دعا سنی اور میں نے تیرے آنسو دیکھے۔ دیکھ، میں تجھے شفا دوں گا اور تیسرے دن تو خداوند کے گھر میں جائے گا۔ اور میں تیری عمر 15 برس اور بڑھا دوں گا، اور میں تجھ کو اور اس شہر کو شاہ اسور کے ہاتھ سے بچا لوں گا، اور میں اپنی خاطر اور اپنے بندہ داؤد کی خاطر اس شہر کی حمایت کروں گا۔ 7ویں آیت ہم سبھی مل کر پڑھیں گے۔ اور یہ یسایہ نے کہا، انجیروں کی ٹکیاں لو، سو انہوں نے اسے لے کر کوڑے پر باندھا، تب وہ اچھا ہو گیا۔ خداوند خدا کے پاک کلام کا پڑھا سنا اور سنایا جناب سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ آئیے بڑی سنجیدگی سے اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جائیے گا۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کو سلام۔ اور یہ جو والا ہم نے تلاوت کیا ہے، دوسرا سلاطین، اس کا 20واں باب اور اس کی پہلی آیت سے ہم نے 7ویں آیت تک اس کو تلاوت کیا ہے۔ تو جب ہم پہلی آیت کو پڑھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے کہ انہی دنوں میں، وہ کون سے دن تھے؟ پہلی بات، انہی دنوں میں حزقیاہ ایسا بیمار پڑا۔ وہ کون سے دن تھے؟ کیونکہ حزقیاہ بادشاہ تھا اور شاہ اسور قوم تھی، اور یہ اسوری قوم جو تھی یہ اسرائیل کے بہت بڑے دشمن تھے۔ اور ان دنوں میں اسوری فوج اسرائیل کی سرحد پر محاصرہ کر کے بیٹھی تھی۔ کیوں؟ کہ وہ اسرائیل پر حملہ کرے، اسرائیل کو مارے۔ اور اسرائیل کا بادشاہ وہ بیمار ہے، بادشاہ بیمار ہے، اور جو دشمن کی فوج ہے وہ ملک کے بارڈر پر کھڑی ہے، کسی وقت بھی وہ حملہ کر سکتے ہیں۔ اور لکھا کہ انہی دنوں حزقیاہ ایسا بیمار پڑا، یعنی کہ قوم اور ملک جو ہے وہ مصیبت میں ہے، وہ جنگ و جدل میں ہے، ان کو ان کے مال و اسباب اور جان کا بے حد خطرہ ہے، اور ان کا بادشاہ بیمار پڑا ہے، بادشاہ بیمار پڑا ہے۔ اور جب بادشاہ بیمار پڑا ہے تو خدا نے اس وقت کے نبی یسایہ جو کہ آموس کا بیٹا تھا، اس کو بھیجا کہ جا کر حزقیاہ کو میرا پیغام دے دے، یہ میسج دے دے کہ جس بیماری میں تو مبتلا ہو چکا ہے وہ ایسی بیماری ہے تیرے لیے، وہ لا علاج ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا، اور تو اس بیماری کی وجہ سے مر جائے گا اور بچنے کا نہیں، یعنی کہ تو مر جائے گا۔ اور مرنے سے پہلے کرنا کیا ہے؟ مرنے سے پہلے تو نے اپنے گھر کا انتظام کرنا ہے، بندوبست کرنا ہے، ارینجمنٹ کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تیرے مرنے کے بعد تیرے تخت پر جو بندہ بیٹھے اس کے لیے کوئی مشکل پیدا نہ ہو، اس لیے تو اپنے جیتے جی
किसी का इंतजाम कर ताकि वो तेरी सल्तनत पर जो है वो तख्त पर बैठे और हुकूमत करे। और जब हिजकिय्याह बादशाह ने ईसा नबी का खुदा की तरफ से ये मैसेज सुना, ये पैगाम सुना, तो वो अपने पलंग पर लेटा हुआ था। और जब वो लेटा हुआ था तो जुलूस ने अपनी मौत का पैगाम सुना, मौत की खबर सुनी। तो बाइबल मुकद्दस में हमने पढ़ा है कि उसने दीवार की तरफ अपना मुंह किया और जार जार रोने लगा। यानी कि वो रोने लगा। दीवार की तरफ मुंह क्यों कर दिया? क्योंकि तारीख बयान करती है, मुफस्सिरीन इस बात को बयान करते हैं कि उस दीवार की तरफ उसने मुंह किया जो दीवार हैकल की तरफ थी। क्योंकि एक कमरे की 4 दीवारें होती हैं, मशरक, मगरब, शिमाल और जनूब। और उसने उस दीवार की तरफ मुंह किया जो दीवार हैकल की तरफ थी। और फिर उसने दीवार की तरफ यानी हैकल की तरफ मुंह करके जार जार रोना शुरू कर दिया और रो रो कर दुआ करता है। और दुआ क्या करता है? दुआ करता है कि ऐ खुदावंद देख, मैं सच्चाई और पूरे दिल से तेरे साथ चलता रहा हूं और तू मुझे क्यों मार रहा है? और बहुत से लोग ये बात कहते हैं कि हिजकिय्याह जो था वो मौत से डर रहा था। ठीक है, वाकई एक इंसान होते हुए हर इंसान मौत से डरता है। हिजकिय्याह भी मौत से डरता ही होगा, क्योंकि रूह और बदन की जुदाई जो है वो बर्दाश्त से बाहर होती है। और हिजकिय्याह ने भी जब अपनी रूह और बदन की जुदाई के बारे में यानी अपनी मौत के बारे में सुना तो वो भी बर्दाश्त ना कर सका और जार जार रोना शुरू कर दिया। और दूसरी बात क्या थी? दूसरी बात वो इसलिए रोया ताकि वो जानता था कि मेरे मुल्क की सरहद पर जो असूरी फौज है वो मुहासरा करके बैठी है, वो मेरे मुल्क, मेरी कौम पर हमला करने वाली है। अगर मैं मर गया, मेरे साथ जो है वो खुदा के कलाम के मुताबिक ये बात पूरी हो गई कि मैं इस बीमारी से मर जाऊंगा, तो मेरी कौम का क्या बनेगा, मेरे मुल्क का क्या बनेगा? और मैंने किसी को तैयार ही नहीं किया कि वो सूरमाओं को सिखाए, वो दूसरों को जंग करना सिखाए, वो ऑर्डर दे कि तुम जंग के लिए निकलो, तुम जंग के लिए लड़ो, तुम जंग करने के लिए दुश्मन पर अटैक करो। और मैंने किसी को तैयार नहीं किया। और मैं मरने से पहले कहाँ जा सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद बीमारी की वजह से चारपाई पर हूँ, अपने पलंग पर हूँ, मैं मर के बिस्तर हूँ। और मैं दूसरों का यानी अपनी सल्तनत का दूसरों को किस तरह से ऑर्डर करूं कि तू इसका इंतजाम कर, तू इसका बंदोबस्त कर, तू इसका अरेंज कर? मैं कैसे कर सकता हूं? क्यों? दूसरी बात कि वो अपनी कौम या अपने मुल्क के लिए जार जार रो रहा था। और तीसरी बात तो वो क्यों रो रहा था? क्योंकि वो उसकी उम्र जो थी वो 39 साल की हो चुकी थी। कितने बरस की? हिजकिय्याह की 39 बरस की उम्र, यानी एक कम 40 साल का हो चुका था और अभी तक उसके औलाद नहीं थी। यानी कि ये 3 या 4 बातें हैं जिन बातों के लिए वो रो रहा था और जार जार रो रहा था कि मैं कैसे करूं, क्या करूं, यानी मेरे पास टाइम नहीं है। और खुदावंदा देख मैं तेरे साथ सच्चाई और पूरे दिल से चलता रहा हूं। यानी कि देख, अगर तेरी नजरों में मैंने अपने काम को मुकम्मल कर लिया है तो मैं हाजिर हूं, मैं मर सकता हूं, तू मुझे अपने पास बुला सकता है, ले जा सकता है। अगर मेरी खिदमत का काम पूरा नहीं हुआ तो खुदावंद अभी मुझे ना मार, अभी मुझे ना मार। अगर मेरा वक्त पूरा यानी मेरी खिदमत पूरी हो चुकी है, अगर तू चाहता है कि मैं इतनी ही खिदमत करूं, क्योंकि जब 19वां बाब पढ़े ना, दूसरा सूरा उसका 19वां बाब, तो हिजकिय्याह बादशाह ने बड़े अच्छे काम किए। उसने गैर मौजूदों के मजहबों को ढा दिया, उसने बहुत ज्यादा गंदगी की सफाई की, यानी कि उसने गंद को मुकाया और उसने लोगों को खुदा के कलाम की तरफ गामजन किया। वो खुदा के लोगों को और खुदा की तरफ वापस लाता है और उसने बड़े अच्छे काम किए। इसलिए तो वो कहता है कि खुदावंद देख, मैं सच्चाई और पूरे दिल से तेरे साथ चलता रहा हूं। बाइबल को बयान करती है, जब आप पढ़ें इस्तिस्ना की किताब तो वहां पर लिखा है कि यानी कि तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अकल से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। और वो कह रहा है कि मैं शरीयत को भी पूरा कर रहा हूं, मैं तेरे एहकाम को भी मान रहा हूं, मैं पूरे दिल से चल रहा हूं। और पहली बात वो कहता है कि मैं सच्चाई से, कैसे?
सच्चाई से, यानी कि मैं तेरे कलाम के ऐन मुताबिक जिंदगी बसर कर रहा हूँ। मैं तेरे कलाम से, तेरे कवानीन से, तेरे आइन से ना दाएं मुड़ता हूँ ना बाएं मुड़ता हूँ। देख खुदावंद खुदा, अगर तेरी नजर में मेरी खिदमत मुकम्मल हो चुकी है, मैंने खिदमत को कर लिया है, तो मैं तेरे पास आने के लिए हाजिर हूँ। अगर तेरी नजरों में मेरी खिदमत अगर पूरी नहीं हुई तो मुझे ना मार मुझे। और फिर वो कहता है कि कोई बात नहीं, अगर मैं जीऊं या मरूं तो भी तेरा हूं, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में तेरे साथ साथ चलता रहा हूं। मैं सच्चाई से और पूरे दिल से तेरे साथ चलता रहा हूं। देख, मुझे मरने का भी कोई डर नहीं है, मुझे मरने का भी कोई डर। यानी कि जो लोग ईमानदारी की जिंदगी बसर कर रहे हैं, खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी मसीह जिंदगी को सर्टिफिकेशन के तौर पे बसर कर रहे हैं, पाकीज़ की तकदीस और कामिलियत की जिंदगी बसर कर रहे हैं, उन्हें मरने का कोई डर और खौफ नहीं है। इसलिए तो कहता है, जी तो चाहता है कि कूच करके तेरे पास आ जाऊं, लेकिन वो कहता है कि जिंदा रहना भी मेरे लिए जरूरी है, ताकि मैं तेरी इंजील की मुनादी करूं। हालेलुया। ईमानदारों के लिए जरूरी है, ईमानदार चाहे जिंदा हो चाहे मरे हो, यानी कि वो हमेशा खुदावंद के हैं। वो कहता है कि मैं जीऊं या मरूं किसका हूं? तेरा हूं। खुदावंद, मैं जीऊं या मरूं तेरा हूं। अगर तू चाहता है तो फिर मैं हाजिर हूं। अगर तू चाहता है कि मेरा काम अभी मुकम्मल नहीं हुआ, अगर तू मुझसे खिदमत लेना चाहता है तो अभी मुझे ना मार, क्योंकि मैं जीऊं और मरूं तो भी तेरा हूं, यानी कि तेरा हूं। और फिर जब वो दुआ करता है तो फिर वो दुआ कर रहा है, वो ज़ात-दार होकर दुआ कर रहा है, और उसकी दुआ खुदावंद की ज़ुरी में पहुंच जाती है। हालेलुया। जब हम दिल से दुआ करते हैं, सच्चाई से दुआ करते हैं, दिलो जान से खुदावंद की तरफ जो है वो पढ़ते रहते हैं, तो यकीनन खुदा हमारी दुआ को सुनता और उसका जवाब देता है। और मैसेज देने वाला कौन था? नबी। मैसेज देने वाला कौन था? पैगाम देने वाला कौन था? नबी। उस नबी का नाम क्या था? यशायाह। क्या था भाई? और यशायाह नबी अभी पैगाम देकर शहर के बीच में भी नहीं जाता, तो खुदा ने फिर यशायाह नबी से कलाम किया और क्या कहा? कहा कि वापस जा और जाकर उसे संदेशा दे, उसे मैसेज दे, उसे पैगाम दे कि मैंने तेरी दुआ को सुन लिया है, मैंने तेरे आंसुओं को देख लिया है, मैंने तेरे रोने को कबूल कर लिया है। और जा, उसे जाकर कह दे कि अब तू मरेगा, अब तू मरेगा नहीं, मैं तेरे जख्म को भी ठीक कर दूंगा, मैं तेरी बीमारी को भी शिफा में बदल दूंगा। और जबकि मैंने पैगाम दिया है कि तू मर जाएगा, बचेगा नहीं, तो अब तू मरेगा नहीं, मैंने तेरी 15 साल जिंदगी और बढ़ा दिया, क्योंकि मैंने तेरे आंसुओं को देख लिया है, मैंने तेरे रोने को सुन लिया है, मैंने तेरी दुआ को सुन लिया है। अब तू मरेगा नहीं, अब तू मरेगा तो कितने साल और जिंदा रहेगा? कितने साल और जिंदा रहेगा? 15 साल जिंदा रहेगा। कितने साल जिंदा रहेगा? 15 साल जिंदा रहेगा। और उसके लिए उसी वक्त जब उसने दुआ की, खुदा पर ईमान रखा, अपने आंसुओं से खुदा की हुजूरी में मन्नतें की, मुनाजातें की, तो खुदा ने उसकी दुआ को सुना और उसको मरते मरते बचा लिया। जो कि अभी थोड़े वक्त के बाद मरने वाला था, खुदा ने उसे दोबारा जिंदगी दी और उसकी जिंदगी मौत से बदलकर 15 साल की उम्र में और बढ़ गई और उसका नया साल मनाया गया। हालेलुया। और उसने नया साल 15 साल, कितने साल की उम्र में से 1 साल के लिए उसे नया साल मनाने के लिए नहीं कहा गया। कितने सालों के लिए नया साल मनाने के लिए कहा गया? कितने सालों के लिए? क्यों? क्यों? क्योंकि उसने क्या किया? उसने कहा कि मैं सच्चाई और पूरे दिल से तेरे साथ चलता रहा हूं, मैं सच्चाई और पूरे दिल से तेरे साथ। यूहन्ना 4 बाब उसकी 24 आयत पढ़े तो वहां पर लिखा है कि खुदा रूह है। खुदा क्या है? रूह है। और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी क्या करें? प्रस्तुत करें। यानी कि इसका खुदा के कलाम के मुताबिक ठीक चल रहा था। और जब ईमानदारी की हालत में उसने आंसू बहा बहाकर रो रो कर खुदा की हैकल की तरफ, उसके घर की तरफ उसने मुंह करके रुख करके दुआ करना शुरू की, तो खुदावंद ने उसकी मौत को उसकी जिंदगी में बदल दिया और जो उसका नया साल शुरू हुआ, उसका नया साल शुरू हुआ। और फिर जब उसका नया साल शुरू हुआ तो फिर खुदा ने उसे शिफा दी, उसे शिफा दी। उसे बीमारी कौन सी थी? बीमारी कौन सी थी? उसे खतरनाक फोड़ा था। क्या था?
ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਉਨ ਦਾ ਫੋੜਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ? ताउन का फोड़ा। और मेरा ख्याल है कि आजकल इसे मेरा ख्याल है कैंसर का नाम दिया गया होगा। और इसे बड़ा खतरनाक ये जो फोड़ा था ये उसे निकला हुआ था, ये बीमारी की सूरत इख्तियार कर गया था और अब कहीं भी उसका बचना मुमकिन नहीं था। इसलिए खुदा ने उसे कहा तू बचेगा नहीं बल्कि मर जाएगा, तू मरने का है, तू बचने का नहीं। फिर खुदा ने उसकी बीमारी का इलाज भी बता दिया। खुदा जब किसी को बचाना चाहता है तो फिर इलाज भी खुद से ड्राफ्ट कर देता है। और यशायाह को उसने उसका पहले पैगंबर बनाया, पहले उसका पैगाम देने वाला बनाया और उसके बाद फिर खुदा ने यशायाह को उसका मानस भी बना दिया। खुदा ने यशायाह को उसका डॉक्टर भी बना दिया। खुदा ने यशायाह को उसका तबीब भी बना दिया। और इलाज किसको बताया? यशायाह को। यशायाह से खुदा ने क्या कहा कि जाके हिजकिय्याह से कह दे कि तू इस फोड़े पर, इस जख्म पर अंजीरों की टिकियां ले और इस पर बांध, और जो ही बांधेगा तो एक दिन के अंदर जो है ये तेरा फोड़ा पक जाएगा, दूसरे दिन इसका मुंह बन जाएगा और तीसरे दिन ये बह जाएगा और तू शिफा पा जाएगा और फिर तीसरे दिन तू मेरे घर में जाएगा। हालेलुया। तीसरे दिन तू मेरे घर में जाएगा, तीसरे दिन तू मेरे। खुदा ने उसे क्यों बचाया? क्यों खुदा ने उसे नए साल दिए या खुदा ने उसको नया साल दिया? 15 साल उसकी जिंदगी क्यों बढ़ाई? क्यों? ताकि वो शिफा भी पा जाए, ताकि अब वो दुश्मन पर फतेह भी हासिल कर जाए। और तीसरी बात वो क्यों रो रहा था? तीसरी बात मैंने क्या बताएंगे क्यों रो रहा था? पहली बात वो क्यों रो रहा था? क्योंकि उसका मुल्क, उसकी कौम मुश्किल में थी। अगर वो मर जाता है तो फिर उसका मुल्क और उसकी कौम दुश्मन के कब्जे में आ जाती है, मारी जाती है या बर्बाद हो जाती है। पहली बात। और दूसरी बात वो क्यों रो रहा है? दूसरी बात वो क्यों रो रहा है कि उसके कोई औलाद नहीं। और खुदा ने वाकया ही उसको 2 साल के बाद औलाद भी दी। हालेलुया। 42 बरस की उम्र में हिजकिय्याह को खुदा ने औलाद भी दे दी। खुदा ने कहा ये ले तू शिफा भी पा गया, तू बच भी गया, तुझे 15 साल उम्र भी मिल गई और साथ साथ तूने जो है अब वो अपने दुश्मनों को भी ज़ेर कर लिया और दुश्मनों को भी शिकस्त दे दी। तू दुश्मनों पर फतेह याबी हासिल करता है। और तीसरी बात जिसके लिए तू रो रहा था, तू पहले गिर रहा था, अब मैंने तुझे औलाद भी दे दी। हालेलुया। और उसका बेटा उसकी जगह फिर उसके मरने के बाद बादशाह हुआ। उसका नाम मनस्सी था, लेकिन वो अपने बाप हिजकिय्याह बादशाह की राह पर ना चला बल्कि वो शरीफ था। वो शरीफ था, वो अच्छे काम नहीं करता था। ये जरूरी नहीं होता कि जैसा बाप वैसा बेटा। अगर इस हवाले को देखा जाए तो फिर बादशाहों की हिस्ट्री को पढ़े तो एक बादशाह अच्छा होता है, दूसरा बुरा उसी का बेटा होता है। कोई बेटा अच्छा होता है, कोई बेटा बुरा होता है। चलो ठीक है, ये और बात है, लेकिन याद रखिएगा खुदा ने उसकी जिंदगी उसे दोबारा अता की, उसे शिफा भी दी, उसे दुश्मनों पर फतेह याबी भी हासिल करने का फजल दिया और फिर उसे औलाद भी अता की। तो खुदा ने कहा क्या? जब तू बच जाएगा तो तू क्या करेगा? तीसरे दिन कहाँ जाएगा तू मेरे, सभी बोले ना, तीसरे दिन कहाँ जाएगा? अगर खुदा ने उसकी जिंदगी में नया साल अता कर दिया तो खुदा ने क्या कहा? तू कहाँ जाएगा? मेरे घर में। कहाँ जाएगा? मेरे घर में। याद रखिए, जो ही हम ईमानदारी की जिंदगी को शुरू कर देते हैं, जो ही हम खुदा के कलाम पर, खुदा पर अपना पक्का पुख्ता ईमान ले आते हैं, तो उसी वक्त हमारा नया साल शुरू हो जाता है। और फिर खुदा क्या कहता है कि तू मेरे घर में आ, तू मेरे, यानी कि तू मेरा बेटा है और तू मेरी हजूरी में है। अच्छी बात है कि बेटा हमेशा अपने बाप के घर में रहे। हालेलुया। जब हम यीशु मसीह को कबूल करने के सबब से खुदा के फर्जंद बन जाते हैं तो खुदा क्या चाहता है कि मेरे बेटे कहाँ रहे? मेरे घर में रहे, मेरे पास रहे। जैसे हम अपने बेटों को जुदा करना पसंद करते हैं कि मैं यहाँ रहूं और मेरा बेटा जो है वो किसी और मुल्क, किसी और शहर, किसी और कौम, किसी और घर में रहे। क्या हम ये चाहते हैं? नहीं, हम चाहते हैं कि हमारा बेटा हमारे पास रहे। और खुदा ने भी कहा कि अगर तू शिफा पा देगा, मैं तुझे यकीनन शिफा दूंगा, मैं तुम्हें 15 साल जिंदगी और बढ़ा देता हूँ और मैं तेरे दुश्मनों को भी तेरे हैंडओवर कर दूंगा, उन पर तेरी फतेह होगी और वो शिकस्त होंगे और यकीनन तेरे औलाद भी होगी। और तू करेगा क्या? तीसरे दिन मेरे घर में जाएगा। जब खुदा हमें नई जिंदगी देता है, नई पैदाइश हासिल करने का फजल देता है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें खुदा की हुजूरी में रहना चाहिए। कहाँ रहना चाहिए? खुदा की हुजूरी में रहना चाहिए। यकीनन हमें खुदा की हुजूरी में रहना चाहिए। और फिर इसी तरह से जब हम ज़बूर 116 उसका मुताला करते हैं, ज़बूर 116
की 14 और फिर 17वीं आयत तक पढ़ते हैं तो वहां पर भी दाऊद बादशाह के बारे में लिखा हुआ है। दाऊद बादशाह के बारे में भी लिखा हुआ है कि बुजुर्ग दाऊद जो है वो भी मौत से छुड़ाया जाता है, वो भी मौत के शिकंजा से निकल जाता है। खुदा दाऊद को भी नई जिंदगी बख्श देता है, खुदा दाऊद को भी नई जिंदगी अता कर देता है। क्यों कि दाऊद भी मौत के शिकंजा में था। पहले वो शाऊल बादशाह के शिकंजा में था। शाऊल बादशाह दाऊद को भी, वो दाऊद बादशाह नहीं था और शाऊल बादशाह है, और शाऊल बादशाह दाऊद को मारना चाहता है और खुदा मुतअद्दिद बार जो है वो कई बार जो है वो शाऊल बादशाह के हाथ से दाऊद को छुड़ाता है, उसे जिंदगी अता करता है। और फिर जब दाऊद बादशाह बन जाता है शाऊल के बाद तो फिर क्या होता है, फिर उसका सगा बेटा अबीसलूम जो है वो उसे मारने की कोशिश करता है, बड़ी कोशिश करता है। और खुदा दाऊद बादशाह को उसके सगे बेटे अबीसलूम से भी बचा लेता है और दाऊद को भी दोबारा जिंदगी दे देता है। जब दाऊद को दोबारा खुदा जिंदगी देता है तो फिर दाऊद क्या कहता है, दाऊद क्या कहता है, ज़बूर 116 की जब हम बात याद को पढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या कि खुदा ने जो सब नेमतें मुझे दी उनके इवज में उसे क्या दूं, मैं उसे क्या दूं। जबकि खुदा ने हमें नया साल दिया है, 2022वां साल जो है वो खुदा ने हमें जिंदा रखा है। बहुत से हमारे अजीज व अकारब जो हैं वो पिछले 2022वें साल में हमसे बिछड़ गए, वो खुदावंद के पास चले गए, खुदावंद में सो गए। लेकिन जो हम बाकी जिंदा हैं, बाकी हम जिंदा हैं, खुदा ने हमें किसी मकसद के लिए, किसी मकसद के तहत, ज़बूर में क्या कहता है, दाऊद क्या कहता है, क्या कहता है, उसने कहा कि खुदावंद की सब बरकतें जो मुझे मिली हैं, खुदावंद की ये एक एक सांस उसकी ब्लेसिंग है। याद रखिएगा, ये एक एक पल, एक एक दम उसकी ब्लेसिंग है। ये जरूरी नहीं कि घर हो, चीजें हो, यही ब्लेसिंग है। उसकी सब बरकतें, यहाँ पर क्या कि खुदावंद की सब बरकतें जो मुझे मिली हैं, इसके वजह में उसे क्या दूं, इसके वजह में उसे क्या दूं। खुदावंद ने हमें जिंदा रखा है, उसकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। जिंदगी है तो सब कुछ है, जिंदगी नहीं तो कुछ भी नहीं है। उसकी जिंदगी ये सबसे बड़ी नेमत है। खुदावंद ने हमें बीमारों से शिफा बख्शी, खुदावंद ने हमें मुश्किलों मुसीबतों परेशानियों से निकाला, खुदावंद ने हमें दुश्मनों से बचाया, अपनी इसके शिकंजे से छुड़ाया। खुदावंद ने हमें नई जिंदगी अता की, जिनके पास औलाद नहीं थी खुदा ने बहुतों को औलाद बख्शी, जिनकी औलाद अच्छी नहीं थी खुदावंद ने उन औलाद को, सारे औलाद को जो है अब वो अच्छा किया, औलाद को अच्छा किया। खुदावंद ने बहुत सी बरकतें दी, बहुत सी ब्लेसिंग अता की, खुदा ने बहुत सी बख्शी अता की। और इन सारी बख्शिशों, बरकतों, नेमतों के बदले दाऊद कहता कि मैं तुझे क्या दूं, मैं तुझे क्या दूं, मैं तुझे क्या दूं, मैं तुझे क्या दूं। अब बारी हमारी है कि हम खुदा को क्या दें। खुदा ने हमें नया साल दिया कि नहीं दिया, बताइएगा। 2023 का नया साल दिया कि नहीं दिया। ये सबसे बड़ी बरकत है, हालेलुया, कि खुदा ने जो हमें जिंदगी की ब्लेसिंग अता की है, बख्शिश अता की है, नेमतें अता की है, इसकी एवज में उसको क्या दूं, उसको ढूंढे क्या दें। देखिए कोई चीज नजर आती है जो खुदा को हम दें, अपनी जेब में हाथ डालें, अपने घर में देखिए हमें खुदा को क्या दें, कौन सा गिफ्ट खुदा को दें, कौन सा गिफ्ट हम खुदा को दें। उसने हमें जिंदगी जो दी है, क्या पैसे से दी है? हमने बहुत से पैसे खुदा को दिए। 2022 में हमने बड़ी गाय दी, बड़ा चंदा दिया, बड़ा हदिया दिया, हम बड़ा रूटीन के साथ शक चाहते रहे, इसलिए खुदा ने हमें नया साल दिया। नो, उसकी सब बरकतें जो खुदा ने हमें दी हैं, इसके एवज हम उसे क्या दें, उसे क्या दें। तो ज़बूर में इसी कहता है कि खुदावंद शिकस्ता दिलों के नजदीक और खस्ता जानों को बचाता है। हमें अपना दिल खुदा को देना है, हमें अपना आप खुदा को देना है। जब हम रोमियो के नाम रसूल का खत उसका 12वां बाब उसकी पहली आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर क्या लिखा है, ऐ भाइयों मैं खुदा की नाम से याद दिलाकर तुमसे इल्तिमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो, ऐसी कुर्बानी होने के लिए, यानी कि हमें अपना खुदा को देना है। क्या देना है? जो खुदा ने हमें ब्लेसिंग्स अता की है, बख्शिशें अता की हैं, नेमतें अता की हैं, हम उसको क्या दे सकते हैं, बताइएगा क्या दे सकते हैं। ज़बूर 55 पढ़े तो वहां पर लिखा है, खुदा कहता है सब कुछ मेरा है, सब कुछ मेरा है, सब कुछ। ये जो नए साल की इबादत होती है ना, ये दरअसल शुक्रगुजारी की इबादत होती है। मैं उसकी नेमतों, उसकी बरकतों के बदले उसे क्या दूं, मैं उसके बिलमुकाबल क्या दूं, मैं उसके इंसानों में क्या दूं, मैं क्या दे सकता हूं। सोचिए, खुदा ने नया साल दिया तो मैं उसे क्या दूं, बताइएगा जरा, सभी सोचिए। शाबाश, खुदा ने हम सबको नया साल दिया है,
हमारी जिंदगी में 100 साल का इजाफा हो गया है, तो हमने से क्या देना है? ये भी बहुत बड़ी बरकत है, ये बहुत बड़ी बरकत है। हमने से क्या देना है? क्या देना है हमने? शाबाश। अपने दिल से मुराद अपना आप। इसका क्या कहता है? मैं सच्चाई और पूरे दिल से तेरे साथ चलता रहूं। अब हमें ये चाहिए कि हम सच्चाई और सारे दिल से, पूरे दिल से, जैसा कि शरीयत में बड़े हुक्मों में से एक बड़ा हुक्म है कि तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अक्ल से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। हमें ऐसा करना है। हमें, और वो किस तरह कर सकते हैं? किस तरह? अपने आप को मार के, अपने आप को मार के, अपने आप को मारने से मुराद क्या है? क्या हम खुदकुशी कर ले? नो, अपने आप को मारने से मुराद ये नहीं है। अपने आप को मारने से मुराद यही है कि मैं अपना सब कुछ खुदा की नजर कर दूं। ऐसी कुर्बानी, अपने बदन की कुर्बानी जो खुदा चाहता है, यानी कि हम अपना खुदा को दे दें। अपने कामों को, दुनियावी कामों को, अपनी दुनियावी सोचों को, दुनियावी ख्यालात को खुदावंद की नजर कर दें और कहें और उसे इसके बादशाह की तरह कि मैं सच्चाई और पूरे दिल से तेरे साथ चलता रहूं। सच्चाई और पूरे दिल से तेरे साथ। तू मुझे क्यों मारना चाहता है? देख मैं तेरा हूं, देख मैं तेरा हूं। अगर तू मार भी दे तो भी तेरा हूं, अगर तू जिंदा रखे तो भी तेरा हूं। इसलिए रसूल कहता है अब मैं जिंदा ना रहा, अब मैं जिंदा ना रहा। क्यों? क्योंकि मसीह मुझ में जिंदा है। मसीह मुझ में, जो यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं, यीशु मसीह को अपना आप दे देते हैं, यकीनन रसूल कहता है कि मैं जिंदा ना रहा। अब वो जिंदा नहीं रहते, क्योंकि उनकी ख्वाहिशें मर जाती है। उनकी ख्वाहिशें मर जाती हैं। उनकी कोई दुनिया ख्वाहिश नहीं रहती। वो दुनिया की ख्वाहिशों से अब वो भर आते हैं। उनको दुनिया की कोई ख्वाहिश नहीं होती, क्योंकि वो खुदा को हासिल कर चुके होते हैं, वो यीशु मसीह को हासिल कर चुके होते हैं। और रसूल कहता है अब मैं जिंदा ना रहा, अब मैं जिंदा ना रहा। तो फिर कौन जिंदा है? अगर मैं नहीं जिंदा तो मुझ में जिंदा कौन है? सभी बताएं। अगर हम जिंदा नहीं, मैं अपनी तरफ इशारा रखें, अगर मैं जिंदा नहीं तो मुझ में जिंदा कौन है? मसीह। सभी कहें अब मैं जिंदा ना रहा, बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। अब मैं जिंदा ना रहा। मेरी पुरानी ख्वाहिशें, मेरे पुराने काम, मेरे पुराने रवैये, मेरी पुरानी बुरी आदतें, बुरी फितरतें, बुरी सोचें, बुरे ख्यालात, बुरे तसव्वुरात मसीह के साथ दफन हो गए। अब मैं जिंदा ना रहा, बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। इसलिए तो दूसरे कोरिन्थियों के 5वें बाब की 17वीं आयत के अंदर लिखा है पुरानी चीजें जाती रही, पुरानी चीजें जाती रही। और पुरानी चीजें तब जाती रहती हैं जब हम खुद को मार देते हैं। अब मैं जिंदा, जब इंसान मर जाता है तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि सब कुछ उसके साथ ही मर जाता है। दुनिया में कोई भी उसका हिस्सा या बकरा नहीं रहता। इस तरह जब हम यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं, सच्ची तौबा कर लेते हैं, तो हम मसीह में मर जाते हैं। फिर हम जिंदा नहीं रहते, तो हमें कौन जिंदा होता है? मसीह जिंदा। अब मैं जिंदा ना रहा, बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। और ईमान की किताब उसका 20वां बाब जब हम पढ़ते हैं तो उसकी 24वीं आयत के मुताबिक लिखा है, रसूल कहता है कि आपने अपनी जान को अजीज नहीं समझता। आप अपनी जान को अजीज नहीं समझता, अपनी जान को अजीज नहीं समझता। मैं अपनी जान को अंजीर के लिए सर्व करता हूँ, मैं अपनी जान को कलाम के लिए सर्व करता हूँ, मैं अपनी जान को खुदा के कामों के लिए सर्व करता हूँ। अब मैं अपनी जान को भी अजीज नहीं समझता, अपनी जान को भी अजीज नहीं समझता। क्यों? क्योंकि अब मैं जिंदा ना रहा। अब मैं जिंदा, जब हम यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं, यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में शख्सी निजात देने के तौर पर हम मान लेते हैं, तो यकीनन हम जिंदा नहीं रहते, बल्कि मसीह हमें जिंदा रहता है। और जिनमें मसीह जिंदा रहता है, नया साल उनका आता है। हालेलुया। नया साल उनका आता है। और जो हमेशा खुद से जिंदा रहने की कोशिश करते हैं, ना वो मरते हैं और ना ही मसीह में जिंदा होता है और ना ही उनका नया साल होता है। नया साल किनका होता है? किनका? जो मसीह में अब मैं जिंदा ना रहा, बल्कि मसीह मुझ में अपने आप को मारना है। अगर नए साल को सेलिब्रेट करना है तो अपने आप को मारना है, अपने आप को मारना है, अपने आप को मारना है। तो जब तक हम अपने आप को मारेंगे नहीं, हम बचेंगे नहीं, हम बचेंगे
नहीं, हम हरगिज़ नहीं बचेंगे। जब अपने आप को मार देंगे, लिखा है कि खुदावंद शिकस्ता दिलों के नज़दीक और खस्ता जानों को बचाता है। खुदा खस्ता जानों को बचाता है, खुदा तरसती जान को बचाता है, बहाल करता है। इसलिए अगर नया साल है, नया साल सेलिब्रेट करना है, हकीकी तौर पे नए साल को बनाना है, तो फिर हमें अपने आप को मसीह में मारने की जरूरत है। मसीह में मारने की यानी कि अपनी पुरानी रंशों को, पुरानी आदतों को, पुरानी बिदतों को, पुराने कामों को, बुरे कामों को, गुनाहों को तर्क करने की जरूरत है, मुड़ने की जरूरत है, यू टर्न लेने की जरूरत है, और फिर हमारा नया साल होगा। जब तक हम यू टर्न नहीं लेंगे, हमारा नया साल यू टर्न से मुराद क्या है? देखिए 22 खत्म हुआ और फिर 23 आया। अगर ये 22 यू टर्न ना लेता, ना मुड़ता, तो 23 ना आता। 23 इसलिए 2022 में अगर हम गुनाह आलूदा जिंदगी बसर कर रहे थे, अगर हम शरारतों की जिंदगी बसर कर रहे थे, अगर हम शरीरों वाली जिंदगी बसर कर रहे थे, अगर हम खुदा के कलाम के खिलाफ जिंदगी बसर कर रहे थे, तो फिर वक्त है हमें यू टर्न लेने की, हमें मुड़ने की, हमें 2023 में दाखिल होने की। और एक ही शर्त है कि हम अपने आप को मारें, अपने आप को यू टर्न ले, मुड़े अपनी बुरी आदतों से, पुराने खमीर से निकाल दे, पुराने खमीर को निकाल दे, बुरी आदतों को, बुरे दिमाग को, बुरी बातों को, बुरे कामों को, बुरे ख्यालों को, बुरी सोचों को। अगर हकीकी नया साल मनाना चाहते हैं तो हिजकिय्याह ने क्या कहा? मैं सच्चाई और पूरे दिल से तेरे साथ चलता रहा हूं। और दाऊद क्या कहता है कि जो बरकतें तूने मुझे दी हैं या खुदावंद से मुझे मिली हैं, उसके एवज मैं उसे क्या दूं? खुदा ने हमें नया साल बतौर ब्लेसिंग दे दिया है, बतौर बरकत दे दिया है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हमने क्या करना है, हमने क्या करना है, हमने करना क्या है। जरा निकालिए गलतियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 2 बाब उसकी 20वीं आयत को हम पढ़ेंगे। गलतियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 2 बाब और उसकी 20वीं आयत क्या बयान करती है, जरा देखेंगे। हाँ जी, यहाँ पर वही कुछ लिखा है, मैं मसीह के साथ मसरूब हुआ हूँ और अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है, और मैं जो अब जिस्म में जिंदगी गुजारता हूँ तो खुदा के बेटे पर ईमान लाने से गुजारता हूँ। और फिर जिसने मुझसे मोहब्बत रखी और अपने आप को मेरे लिए मौत के हवाले कर दिया, ये है उसको कबूल करना। पौलुस रसूल ये कबूल करता हुआ नए साल को मना रहा है कि मसीह मुझ में जिंदा है। मैं जिंदा नहीं बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। क्यों जिंदा है? क्योंकि वो मेरे गुनाहों के लिए मर गया, मेरे गुनाहों के लिए मर गया, मेरी जगह वो मरा। मौत मेरी थी और उसने मेरी मौत को अपने ऊपर ले लिया। देखो वो खुदा का बर्रा जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता, उसने मेरी मौत को अपने ऊपर ले लिया और मेरी मौत को उसने साफ बर्दाश्त किया। अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। अगर नया साल हकीकी तौर पे मनाना है तो पुरानी चीजों को निकालना है, पुरानी चीजों को निकालना है। कमरे से जब तक पुराना सामान ना निकाला जाए, नया सामान एडजस्ट नहीं होता। ऐसे ही है, जब पुराना सामान निकालेंगे तो नया सामान एडजस्ट होगा, खुद हो जाएगा, खुद तरतीब आ जाएगी, खुद रूटीन बन जाएगी और सारा सेटअप खुद बनता जाएगा। हालेलुया। आइए अपने दिलों को खुदावंद के लिए खाली करें और पुरानी जिंदगी को, पुरानी बातों को, पुराने कामों को, पुरानी बिदतों को, पुरानी रस्म और रिवाज को निकालें। और जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। आइए खुदावंद की हुजूरी में उसके कलाम के मुताबिक, उसके कलाम के मौजब नए सिरे से पैदा हो और नए साल को हकीकी तौर पे मनाएं। खुदावंद इस कलाम की बरकत हम सबको